Cyber ethics. What is cyber ethics? What are cyber crimes and what are cyber laws that are available for the prevention of these cyber crimes? And this is the sequence. First we will learn about the cyber ethics, then the cyber crimes, then common forms of cyber crimes and cyber laws in Pakistan. Cyber ethics. It is study of ethics pertaining to computers, covering user behavior and what computers are programmed to do, and how this affects individuals and society. Like cyber ethics refers to the code of responsible behavior on the internet, just as we are taught to act responsibility in everyday life, with lessons such as don't take what doesn't belong to you and do not harm others. So we must act responsibly in the cyber world as well. For years, various governments have enacted regulations while organizations have defined policies about cyber ethics. Internet ethics. Internet ethics means acceptable behavior for using internet. We should be honest, respect the rights and property of others on the internet. And the basic rule is that do not do something in cyberspace that you would consider wrong or illegal in everyday life. If you breach the privacy of others in your daily life, same if you will breach the privacy of others on internet will be considered unethical. Cyber law. Cyber laws are the area of law that deals with the internet's relationship to technological and electronic elements, including computers, software, hardware, and information systems. So पाकिस्तान में भी इसी तरह के बहुत सारे लॉज मौजूद हैं. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस, इसी तरीके से एक टेलीग्राफ एक्ट था इससे पहले. तो ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स जितने भी यूज़ होते हैं, वो सॉफ्टवेयर हों, हार्डवेयर हों, आपके फ़ोन हों, उन सब को रेगुलेट करना, ताकि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो उसके लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाए. साइबर क्राइम्स, हम इनको ज़रा देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ कौन कौन से कॉमन जो प्रिवेलिंग साइबर क्राइम्स हैं. तो क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स के यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिवाइसेस टू एडवांस अदर एंड्स include fraud and identity theft, although this increasingly uses malware, hacking, or phishing, making it an example of both computer as target and computer as tool crime. And cybercrime may threaten a person or a nation's security and financial health. साइबर क्राइम्स में क्या होता है? सबसे पहले कि वो आपको उसके लिए मालवेयर यूज़ करते हैं. आपके कंप्यूटर पे कोई चीज़ सडनली पॉपअप होती है, आपके मोबाइल पे पॉपअप होती है, आप उसको क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके जो डेटा होता है उस तक वो पहुंच जाता है और फिर वहाँ से वो चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो उसको लेनी होती हैं, वो वहाँ से ले लेता है, फिर उसको हैक कर लेता है. फिर फिशिंग है. तो ये बेसिकली कब सम टाइम ऐसा भी होता है किसी
ख़ास डिवाइस को वो टारगेट करता है, या किसी जो डिवाइस है वो यूज़ करता है किसी और, एज ए टूल यूज़ करता है किसी और क्राइम को कमिट करने के लिए। और साइबर क्राइम ये एक शख्स को के लिए भी नुकसानदेह है, एक और एक नेशन की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और इसी तरह फिनेंशियल मैटर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और ऑफेंसेस that are committed against individual or groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm or loss to the victim directly or indirectly using modern telecommunication networks such as internet networks limited including but not limited to chat rooms, emails, notice board and groups and मोबाइल फ़ोन। वो ऑफेंसेस जो कि आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ करते हैं, लेकिन आपका कोई क्रिमिनल मोटिव होता है, वो इंटेंशनली आप किसी को रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो जब आप उसको हार्म करने की ये सारी कोशिशें मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, तो फिर डेफिनेटली फिर क्या होगा कि दैट इज अ क्राइम इन द फील्ड ऑफ साइबर क्राइम, तो वो साइबर क्राइम फॉल करेगा। अच्छा, इसको द कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स, बिफोर गोइंग to discuss these all crimes, the few things that are necessary to determine responsible behavior in cyber world, that is that do not use rude or offensive language when you are talking or chatting or in conversation with someone. So you must not be rude or offensive, and do not cyberbully. This is very much important, that you must not bully someone. Do not plagiarize, that you must not steal someone's academic or research work as your own. And do not use someone else's password. Do not break into someone else's computer. And do not attempt to infect or in any way try to make someone else's computers unusable. And you must adhere to copyright restrictions when downloading material from the internet, including software, games, movies, and music, etc. So here are few crimes. So we will see that what is phishing scams, online scams, malware, email bombing, virus dissemination, logic bombs, theft, and social media hacking spam. So first, the phishing scams. Phishing scams are attempts by scammers to trick you into giving out your personal information, such as bank account numbers, passwords, and credit card numbers. These scammers will contact you out of the blue via email, text message, phone call, or even through social media, pretending to be a legitimate business, such as your bank, telephone company, or even internet provider. Majority of time, the Pakistanis, they face this situation. बहुत सारी कॉल्स उनको आती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, इस नंबर पे कॉल करें। और वो एक लेजिटिमेट बिजनेस जो कि आपका बैंक हो सकता है, उसकी तरफ से वो उनका नुमाइंदा बन के आपको वो कोशिश करता है कि आपको आपकी डिटेल ले ली जाए, आपके पासवर्ड ले लिए जाएं,
क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया जाए और वो आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने आ जाता है। अचानक आपने ईमेल खोला तो सामने ईमेल आई हुई थी, जनाब आपका हम जी बैंक अल्फला से हैं, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जल्दी से वो इस नंबर पे कॉल करें अगर आप अनब्लॉक करवाना चाहते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स फिर जन्म लेते हैं वहाँ से। अब the scammer may ask you the scammer may ask you to update them on your details so they can refresh their systems. They may even ask you to fill out a survey as you have the chance to win a prize at the end. But here is where the scammer can get access to your email address, phone number, and more. तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम तक अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं हमने आपके अपने सिस्टम में उनको अपडेट करना है, आप बताएं आपका क्या है। या सम टाइम ऐसे भी आ जाता है कि जी आप एक प्राइज़ विन कर सकते हैं, ये सर्वे है, इसको फिल करें, आप अपनी डिटेल्स इसमें दे देते हैं। और जब आप डिटेल दे देते हैं सारी, चूँकि आपको एक लालच होता है कि आप इतना बड़ा प्राइज़ विन करेंगे, तो वो उसमें फिर आप सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो फिर स्कैमर जो है वो आपके ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और बाकी डिटेल्स जो भी उसमें अवेलेबल होती है वो उसको यूज़ करते हुए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम्स are basically scams that happen online through network communication. Whether that is tricking you into giving out personal details online by an ad popping up telling you you have won something and asking for your card details to pay for shipping. Sadly, you will never receive anything, but you will start noticing weird transactions coming from your bank account. आपने वो कभी उस चीज़ के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, बट सडनली वो पॉपअप होता है और वो पॉपअप होके आपको कहता है जी आप हमें, आपने ये विन कर लिया है, ये लॉटरी आपके नाम पे निकल गई है, आपके ग्रीन कार्ड आपने अप्लाई किया था वो निकल आया है, फिर आप सिंपली आप हमें ये डिटेल दे दें तो आप ये जो है आपको हम शिप करते हैं जो भी आपका इनाम है। तो वो प्राइज़ जो जिसका आप हासिल करना चाहते हैं वो आप कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से हासिल करें। तो अपनी जब आप इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं तो फिर यू डोंट रिसीव एनीथिंग, और फिर आप देख रहे होते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, आप जा रही होती है। तो वैसे and malware scams. Malware is the contraction of malicious software onto your system. Like it is just like a software, but because it is installed for malicious activity, so that's why it is known as the malware. It is a piece of software written with the internet with the intent of causing harm to data and devices. So the basic purpose is to cause harm to the data and the device what you are using. It might be any computing device. So malware is the overarching name for different types of viruses such as a Trojan and spyware. Malware is often done through a range of viruses that will get into your computer to cause havoc by damaging your computer, tablet, phone. So the culprits can steal credit card details and other personal information. So malware एक्चुअली बहुत सारे आपके सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसको आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, एंटी वायरसेस जिनको कहा जाता है। अब वो एंटी वायरसेस सॉफ्टवेयर्स कंपनीज ये करती हैं कि जब भी आप उनके सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेते हैं या डाउनलोड, आपने जब भी डाउनलोड किया
तो वो अपने एंड पे कुछ ऐसी चीज़ें के साथ अपलोड आपको करवा देती हैं कि वो आपका डेटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चोरी स्टील करना शुरू कर देती हैं। जब तक आप उनके साथ ठीक चल रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके कंप्यूटर को या आपके डिवाइस को वो खुद उसके अंदर कोई ऐसा स्पाईवेयर या ट्रोजन इंस्टॉल कर देंगे कि आपको डेफिनेटली वो कहेंगे अब ये जो है बहुत क्रिटिकल है, इसको आप ये सॉफ्टवेयर करेंगे तो ये मालवेयर या ट्रोजन या स्पाईवेयर जो भी होगा वो ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज फिर आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो ऐसी चीज़ें। जी जी। Email bombing. An email bomb is more a form of internet abuse. Email bombing is an overload of emails directed to one email address. This will cause the person receiving the email server to become sluggish or even crash. They may not necessarily be stealing anything from you, but having a sluggish server can be real pain and hard work to fix. दे विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, उनको डाटा नहीं चाहिए, सिंपली आपका जो सर्वर है आप उसको वो इतना स्लो कर देते हैं कि अब आसानी से वो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो उतनी ईमेल्स भेजते हैं वो आपको डायरेक्ट कर देती है किसी और एड्रेस पे, और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको वो जो सर्वर होता है वो आपकी ईमेल के अंदर वो एक्सेस करता है और फिर आपको इस सिस्टम को स्लो कर देता है, आपके सर्वर को स्लो कर देता है। Then logic bombs, another kind of a bomb. जैसे हमारी मॉडर्न जो या दुनिया है ना, एक आम सी दुनिया है, उसके अंदर भी कुछ बम होते हैं, तो इंटरनेट की दुनिया के भी कुछ बम होते हैं। And logic bombs act in the same way as a virus, but are small programs or sections of a program which are triggered by an event. This event can be a certain date or time, a certain percentage of disk space filled, the removal of a file or so on. Majority of time आपने देखा होगा कि आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है कि यार मेरी मेमोरी तो बहुत ज़्यादा पड़ी है, लेकिन ये दिखा रहा है कि आपकी डिस्क जो है ये फुल है, इसको आप कुछ फाइल्स को कुछ डाटा डिलीट करें, लेकिन एक्चुअल में आपने कुछ भी उस पर आप जो है लोड नहीं किया होता, कुछ भी आपने डाउनलोड नहीं किया होता। आपकी अब वो जो भी आपकी वो होती है मेमोरी, वो तो आप वो आपके नज़दीक तो बिल्कुल खाली होती है, लेकिन वो ऐसी चीज़ शो करता है कि आप ये करें, ये फाइल रिमूव करें, ये करें और ये करें। सो अ प्रोग्राम could then delete critical sections of code, rendering your software useless. तो वो कुछ सेक्शंस ऑफ कोड को वो डिलीट कर देता है और फिर आपके सॉफ्टवेयर को यूजलेस कर देता है। और the people who implement logic bombs are most commonly installed by insiders who already had access to the systems. Theft. Internet theft is the broad term for any type of theft that happens over the internet. This can be done through many ways such as fake ads, fake emails, viruses, and snooping. The aim of internet theft is to steal your personal information and use it to then steal money out of your bank account or make purchasing using your details. Like whatever the details they receive, they steal, they uses it, and they commit theft. Social media hack and spamming. Social media hacking is often done as a joke, like the attack by the people who hacked Burger King's Twitter account, and many celebrities that are hacked may end up following people they would not usually or put a random statuses. Even though for the average Joe, seeing a celebrity or brand post weird stuff can be amusing, it is an invasion of privacy. So social media hacking, this is very common in our society. किसी का ट्विटर अकाउंट आपने
हैक कर लिया, किसी का फेसबुक अकाउंट आपने हैक कर लिया, किसी का आपने और जितने भी सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है वो आपने, और फिर आपने उस पर कुछ ख़ास किस्म के स्टेटस डालना शुरू कर दिए, और वो आपको बाद में पता चलता है कि यार ये तो मैंने नहीं किया, बल्कि आपके दोस्त आपको कॉल करके बता रहे होते हैं कि यार ये तुमने क्या स्टेटस लगाते हो यार, ये आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये तुमने मुझे क्या मैसेज किया है। तो वो किसी सेलिब्रिटी का भी हो सकता है, कोई अकाउंट हैक हो सकता है, किसी ब्रांड का भी हो सकता है। साइबर क्राइम लॉज इन पाकिस्तान, एज आई मेंशन अर्लियर के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम आर्डिनेंस मौजूद है। उसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसके अलावा द टेलीग्राफ एक्ट है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे लॉज मौजूद हैं जो कि साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए हैं। तो साइबर क्राइम लॉ, द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये नेशनल असेंबली ने 2016 में पास किया, और इससे पहले एक ऑर्डिनेंस था जिसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस कहते थे। और ऑर्डिनेंस एंड एक्ट में द डिफरेंस इज दैट एक्ट इज forever until and unless it is amended by the parliament, और ऑर्डिनेंस जो है ये हमेशा कुछ अरसे के लिए होता है, फॉर ऑलमोस्ट 3 months, और आफ्टर 3 months उसको फिर विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट उसको फिर कंटिन्यू किया जाता है, और फिर हर 3 महीने बाद उसको जो पार्लियामेंट है उसको अप्रूव करना होता है। According to the Act, the purpose of the legislation is to prevent unauthorized acts with respect to information systems and provide for related offences as well as mechanisms for their investigation, prosecution, trial, and international cooperation. So, इस एक्ट का बनाने का जो मकसद है वो यही है कि कोई भी ऐसा अनऑथराइज्ड एक्ट जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिलेटेड है, और वो ऐसे ऑफेंसेस जो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू किए गए हैं, नेटवर्क सिस्टम के थ्रू किए गए हैं, या इंटरनेट के थ्रू, या किसी भी कंप्यूटिंग मशीन के ज़रिए किए गए हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोसिक्यूट, ट्रायल और फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी साइबर क्राइम लॉज या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 ये पास किया गया। And this act introduces a range of offences involving the unauthorized access, transmission, copying, or interference in an information system or data. A cyber terrorist crime is deemed to have been committed if a crime connected to critical infrastructure is carried out with the intent to commit terrorism, and the punishment for such an offence upon conviction is up to a 14 years term of imprisonment or a fine of rupees 5 million or both. तो this is the maximum punishment कि आपको 14 साल सज़ा हो सकती है या 50 लाख रुपए आपको जुर्माना, या दोनों हो सकती हैं। तो बहुत सारे इसमें क्राइम उनको इन्वॉल्व किया गया है, और वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, आपने किसी की इजाज़त के बगैर उसके अकाउंट में, या जिसका जो भी अकाउंट था सोशल मीडिया का या किसी वेबसाइट का, आपने उसके एक्सेस किया उसको, या आपने कोई गलत किस्म की इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया, या आपने कॉपी पेस्ट मारा, तो या आपने किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को या किसी भी डाटा को आपने इंटरफेयर किया। तो इसके अलावा साइबर टेररिस्ट क्राइम इसको भी इन्वॉल्व किया गया। एंड दैट्स ऑल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़।